Yes, Anita ma'am. Hello, good morning, teacher. Now, am I audible? Yes, ma'am. Screen. Okay. Yes, I am sharing. Is it Yes. visible? Yes, ma'am. Okay. Now I will start. Good morning to all of you. This is Anita, teacher from Shahaji Nagar BMC School. In the last lecture, we have learned about the chapter 6 population. From that, we have learned about the population of Brazil and India. And after that, we have learned about the components of population. And in this lecture, we'll learn about population growth rate, life expectancy, literacy rate. These are the population. These are the components of population, or we can call it as a population composition. The first, sex ratio, we have already discussed in the last lecture, and second, age and sex pyramid. It is also we have learned. Now we'll see the third composition, that is the population growth rate, and after that life expectancy, and the last one is literacy rate. Now we'll start. This is the first element which we have already learned, but I am revising this. These are the characteristics of sex ratio. The first is, with reference to both the countries, the characteristics of populations are prominently notable. Now you can see this sex ratio graphs on in your textbook on page number 40. It is already given. Both graphs are given, the sex ratio of Brazil and sex ratio of India. Figure 6.3. You have to observe this. The sex ratio of Brazil has been more than 1000 since decades. What we have learned from these graphs, we have already observed that the sex ratio of Brazil is more, means it is more than the male. The percentage of female is more than the male, means it is more than the 1000. The second is, considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001. And we have seen the drastic change in Brazil from 2001 to 2011. That increase in the sex ratio is very high in amount. The next, in India, men outnumber women. What we have observed in our in the sex ratio of India, in that graph, we have observed that the men are more than the women. In India, we see fluctuations in the sex ratio since few decades. There has been a slight increase in the sex ratio after 1991. तो जैसे कि हमने देखा था कि इंडिया का जो सेक्स रेशो है उसमें हमें मोस्टली क्या है, फ्लक्चुएशन नजर आ रहे हैं, बट इन फ्लक्चुएशंस को भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज और हाई डिक्रीज नहीं है. इट इज नियर अबाउट टू दैट रेशो, मीन्स it is the near about to 940, that is the sex ratio of India. Means 1000 मेल रहेंगे तो 940 इतने तक ही फीमेल का हमें वहां पर रेशो देखने को मिलता है. तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्स रेशो में डिस्कस किया था. नाउ विल सी द सेकेंड, दैट इज एज एंड सेक्स पिरामिड. इट इज ऑल्सो वी हैव लर्न.
यहाँ पर जो एज एंड सेक्स पिरामिड दिया है, इसकी बात करेंगे तो इसको पॉपुलेशन पिरामिड इस नाम से भी जानते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। और ये हमें क्या बताता है, तो एज एंड सेक्स पिरामिड मीन्स क्या, तो जो भी चाइल्ड है या फिर ह्यूमन बींग्स है उस कंट्री में, पर्टिकुलर ब्राजील में या फिर इंडिया में रहने वाले, उनका एज के कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल इनका परसेंटेज यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जैसे कि अलग अलग अगर तुम लोग देखोगे वाई एक्सिस पे दिया हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ, ऑन द वाई एक्सिस, तो वहां पर फ्रॉम 0 टू 100 यहाँ तक उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं। वो नंबर्स क्या है, तो एज ग्रुप्स हैं, तो वो नियरली 4 इयर्स के एज ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो एज ग्रुप्स दिए हैं उसमें मेल कितने हैं उस एज ग्रुप में एंड फीमेल कितने हैं उसी एज ग्रुप के, तो वो हमें पता चलता है। एंड अगर हम इंडिया का भी देखते हैं तो सेम वैसा ही है, बट हमें इन दोनों भी पिरामिड्स में क्या है, लिटिल डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ब्राजील का पिरामिड हम अगर बेस की तरफ देखते हैं तो इट इज नैरो, एंड अगर हम उसको मिडल में देखते हैं, मिडल में मीन्स एज ग्रुप 30 to 34, यहाँ पर हमें वाइड देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास 2016 में एज ग्रुप 30 to 34, 35 to 39, ये जो एज ग्रुप है इसमें हमें ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मीन्स जो अभी यंग है वो अभी दे आर गेटिंग ओल्ड, मीन्स वो अभी उनका एज क्या हो रहा है, ओल्ड एज की तरफ अभी ब्राजील कंट्री क्या हो रहा है, टर्न कर रहा है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड जो पिरामिड दिया हुआ है इंडिया का, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमें वो बेस की तरफ हमें क्या दिख रहा है, वाइड दिख रहा है, बेस की तरफ वो पिरामिड वाइड दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 to 4 या फिर वहां से लेके 15 to 19 तक के हमें उस एज ग्रुप में हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये मेल एंड फीमेल इन दोनों की जो ये है पॉपुलेशन है वो हमें उसका परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है टोटल पॉपुलेशन में। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज नाउ ग्रोइंग, ये क्या हो रहा है अभी, ये यंग कंट्री कहलाता है इसी वजह से। क्यों, क्योंकि यंगस्टर्स अभी यहाँ पर ज्यादा है, वो अभी नियरली 20 ईयर्स तक के और भी क्या रहेंगे, वो यंग रहेंगे। देन ब्राजील का जैसे अभी का कंडीशन है कि वहां पर ओल्ड एज पीपल ज्यादा है, तो वैसा अपने यहाँ पर इंडिया में आफ्टर 20 ईयर्स इट कैन बी हैपन। तो तब तक के तो और भी क्या है, जो हमें हमारे यहाँ पर जो चाइल्ड एज ग्रुप में जो दिख रहे हैं वो सब क्या होंगे, वो पॉपुलेशन क्या होगी, वो डे बाय डे वो यंग होती जाएगी और अपनी कंट्री और भी यंग होती नजर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि इंडिया क्या है, ये एक यंग कंट्री है एंड ब्राजील क्या है, तो ओल्ड कंट्री है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स पॉपुलेशन, इट इज आल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। We have know that it is used to study the age and sex related aspects of regions population। तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर अगर रीजन लेते हैं तो उसका हमें पॉपुलेशन एज के साथ, अगेन पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है इसके साथ जब भी दिखाना होता है तो दैट टाइम एज एंड सेक्स पिरामिड कैन बी यूज एंड इट इज अ इफेक्टिव वे टू show these things. This pyramid helps us to know the proportion of children, youth and the old people in our country। यहाँ पर हमें एक साथ चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड पीपल एक साथ एक कंट्री के देखने को मिलते हैं, एंड वो भी कैसे, मेल एंड फीमेल का परसेंटेज के साथ। In this pyramid we can see the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in age group more than 80 years is more in Brazil than in India। अगर हम देखेंगे तो 80 प्लस के जितने भी लोग हैं या फिर पॉपुलेशन है वो हमें इंडिया में कम नजर आती है, बट हमें ब्राजील में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आगे आएगा लाइफ स्पैन के बारे में। तो हमें यहाँ पर ये नोटिस करना है कि अपने यहाँ पर जो है ना लाइफ स्पैन जो है पीपल का वो कम नजर आ रहा है। कैसे, क्योंकि
80 प्लस के एज में हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब क्या, तो पॉपुलेशन एकदम थिन लाइन वहां पर देखने को मिलती है। ब्लू कलर की तो वो न के बराबर दिख रही है, पिंक लाइन लिटिल बिट थिन दिख रही है। मीन्स क्या कि जो लॉन्ग लाइफ जीने वाले हैं वो फीमेल फीमेल जो है पिंक लाइन में दिखाए हुए वो हमें नजर आते हैं, बट मेल के तो एकदम से न के बराबर हैं 80 प्लस एज ग्रुप के। अगर हम ब्राजील में देखेंगे तो वहां पर भी फीमेल जो है उनका थोड़ा सा थिक लाइन देखने को मिलता है 80 प्लस के ग्रुप में। तो वहां पर हमें ये समझ में आता है कि वहां पर भी फीमेल का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेल। The next, considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older. But in India, the situation is different. The proportion of youth in India is more. Just now I have said to you कि इंडिया में क्या है, तो यूथ का जो proportion है वो ज्यादा है as compared to the Brazil. This means India has a higher working population. और इसी वजह से क्या होता है, इंडिया क्या होती है अगेन और डेवलपमेंट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। Now the third point, that is the population growth rate. This is the important topic, population growth rate. Here on the screen you can see two different graphs. First is showing the growth rate of population from Brazil and the second is growth rate of population from India. तो हमें यहाँ पर साफ clearly it is visible that one graph और वो pink line है, that is decreasing in the first graph, and in the second graph it is decreasing but not much amount as compared to the first graph. तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है पिंक लाइन जो है फर्स्ट ग्राफ में, मतलब ब्राजील के ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्राफ में हमें क्या नजर आ रहा है, तो वो जो लाइन है फ्रॉम 1960 टू 2000 ये क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रही है। वहां पर अगर हम y एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो दिया है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंट, तो परसेंट में ग्रोथ रेट दिया हुआ है। जितनी भी पॉपुलेशन अभी है, जितनी भी पॉपुलेशन अभी ब्राजील में है उसको अगर 100% देखा जाए, मतलब दैट टाइम भी कभी 1960 में भी जितनी टोटल पॉपुलेशन थी ब्राजील की उसको अगर हम 100% क्या कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर कितने न्यू बॉर्न बेबीज हैं, मीन्स क्या, तो कितने पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, तो जब भी न्यू बॉर्न बेबीज आएंगे तभी क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसको हम क्या पॉपुलेशन के हिसाब से निकालते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंट। तो वो हमें कितनी नजर आ रही है इन परसेंट में, अगर देखेंगे तो 1960 में हमें 3.0% इतना ग्रोथ रेट हमें नजर आ रहा है। मतलब सपोज अगर टोटल पॉपुलेशन 100 थी 1960 में, तो उसके पीछे कितने 3 बेबीज वहां पर बॉर्न हुए होंगे, सेम वे से। तो ऐसे ही क्या होता है, उसका कैलकुलेशन होता है। तो ऐसे ही वहां पर 1960 में बर्थ रेट जो था, मींस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो 3.0 था। देन 1970 में इट इज डिक्लाइंड टू लेस देन 2.5, मीन्स यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन होता नजर आ रहा है। देन उसके बाद वो 1970 के बाद स्लाइटली वो जो डिक्लाइनिंग का रेशो है, परसेंटेज है, वो कम होते हुए नजर आ रहा है। बट इन 1980 इट इज डिक्लाइंड इन हाई अमाउंट एंड आफ्टर 1980 from 1990 we can see that the population growth rate is again declining. Then in 2000 उसको अगर हम देखते हैं तो it is nearly 0.3%। तो हमें लेके 0.3% तक के ग्रोथ रेट जो है ब्राजील का, वो हमें कम होते हुए नजर आ रहा है, इतना वो डिक्रीज होते जा रहा है। मीन्स 2000 में जो दिख रहा है हमें ग्रोथ रेट 0.3%,
वो अभी भी बढ़ा नहीं है, अभी भी वो क्योंकि एटलीस्ट 2 डिकेड ऐसे जाते हैं कि उसका ग्रोथ रेट के ऊपर उसका कुछ अफेक्ट हो। तो अभी भी ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डे बाय डे डिक्रीज ही होते जा रहा है। अगर हम विल कम टू द नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हम इंडिया में देखेंगे तो हमें क्या कर्व शेप में देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन ब्राजील का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो पिंक कलर का लाइन है वो कैसे डायरेक्टली हमें डाउन साइड आते हुए नजर आ रहा है, वैसा ही इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो पिंक कलर का लाइन दिया है ग्राफ का, वो सडनली ऐसा डिक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पर उल्टा हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम 1961 में जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का दैट वाज 2%, पर उसके बाद हमें उसमें 1971 में क्या दिख रहा है, स्लाइटली वो इंक्रीज हुआ है। देन 1981 में वो स्टेडी है, then after that 1991 it is also steady, and if we talk about the 2001 we can see there is a slightly decrease in the population growth rate. Then in 2011 it is decrease in little more amount. तो यहाँ पर हमें 2001 के बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का और थोड़ा ज्यादा डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, बट वो सडनली वो जीरो पे नहीं आएगा। इवन ब्राजील का भी सडनली जीरो तक के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भी ब्राजील की अभी की टोटल पॉपुलेशन है जैसे कि 19 करोड़, वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू 2016 डेटा। तो उतनी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में अगर जो भी न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं तो वो रेट तो कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली जीरो तक आ जाएगा। तो सेम वैसे इंडिया का भी अगर हम देखेंगे तो इसका भी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, बट क्या कितना हुआ है, स्लाइटली हुआ है, ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। तो इसके पीछे भी हमें मोस्टली क्या दिखते हैं, कुछ सर्टन रीजंस है। तो वो कैसे हैं, अगर हम जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो हमें ज्यादा उसमें क्या है डिक्रीज नजर नहीं आता है। बट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें हम अगर देखते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उनका वो हमेशा हमें क्या नजर आता है, लेस इन अमाउंट नजर आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी पीपल जो क्या रहते हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के जो पीपल हैं वो क्या है पॉपुलेशन से रिलेटेड उनमें अवेयरनेस ज्यादा नजर आता है। इवन उनका लाइफस्टाइल जो होता है उसको भी मेंटेन करने के लिए वहां पर अगेन उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी होते हैं। तो वो सब चीजों का इम्पैक्ट होके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहां पर कंट्रोल में नजर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दिस ग्राफ शोज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ये दोनों ग्राफ हमें क्या दिखाते हैं, तो growth rate of population. The next is the rate of growth of population has reduced considerably in Brazil. However, this is not the condition in India. From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 crores. हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन 2001 से लेके 2011 तक 18.2 करोड़ इतनी बढ़ चुकी है। India's population growth rate higher till 1971. तो हमने देखा था ये 2 से लेके 2.3 तक, फ्रॉम 1961 टू 1971 तक वो ग्रो हुआ था। देन दिस रेट स्टेबलाइज, और यही रेट जो था वो स्टेबलाइज हुआ था 1991 तक के। The rate of population growth is now declining, but the population is still growing. Just now I have said कि भले ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है, पर पॉपुलेशन जो है अभी भी बढ़ रही है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उनके पीछे जितने भी अगेन न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनकी पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन की उसमें ऐड होते जाती है, तो इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ते जाती है।
खाली उसका जो रेट है बढ़ने का वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। मीन्स सपोज पहले अगर एक फैमिली में 2 चाइल्ड होते थे या फिर 3 चाइल्ड होते थे, उसके बाद वो क्या होने लगे, 2 चाइल्ड होने लगे, देन उसके बाद 1 चाइल्ड रहने लगे, ऐसे मतलब इन दिस वे। It is observed that in Brazil the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in the next 2 decades. तो यहाँ पर हमें जो ब्राजील का जो डिक्लाइनिंग रेट दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि ब्राजील की जो पॉपुलेशन है ये और 2 डिकेड्स तक के वो बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रहा है। Now the fourth, that is the life expectancy. First of all, we'll understand the life expectancy. Expectancy मतलब क्या? तो जो लाइफ स्पैन होता है पीपल का, मीन्स एक इंसान कितनी उम्र तक वो जीता है, कितनी आयु तक उसका वो जिंदा रहता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब क्या कि सपोज इंडिया में अगर हम एवरेज निकालते हैं, 100 पीपल रहते हैं, उसमें अगर हम एवरेज निकालते हैं उनकी कि उनकी फ्रॉम बर्थ टू टिल द डेथ, अगर कोई 60 साल की उम्र में मरते हैं, कोई 70s में, कोई 65 में, कोई 50 में, तो उनकी टोटल अगर हम उनकी एवरेज निकालेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम इंडिया की देखेंगे और वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम ब्राजील की देखेंगे, तो दोनों कंट्रीज की हम देखेंगे और उनकी कंपेयर भी करके देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया है ग्राफ, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड सेकेंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया। It is very easy topic to understand. On y-axis, age is given, and on x-axis, the decades are given. Means in the first graph, we can see from 1960 to 2016 यहाँ तक के डेटा दिया हुआ है, और y-axis पे क्या दिया है, 0 to 80 years यहाँ तक दिया है। क्योंकि भले ही कोई इंसान कोई जो है उस कंट्री के 100+ ईयर्स में वो जीते होंगे, मीन्स 110, 102, 103, 110 यहाँ तक के वो जीते होंगे। बट अगर हम एवरेज निकालते हैं तो किसी किसी की मृत्यु जो होती है, डेथ जो होती है, वो 40 एज के ईयर्स में भी हो सकती है, किसी की 50 में भी। तो जब भी ऐसा एवरेज निकालते हैं तो इट इज लेस देन 100, तो इसी यहाँ पर ऊपर 100 तक के दिया नहीं है। तो जब भी ऑल पीपल अगर वो 100 साल तक जिएंगे तभी वहां पर ये जो y एक्सिस पे जो अमाउंट दिया है ना 80 ईयर, उसके अबव और देना पड़ेगा, मीन्स 90 और 100, बट अभी इट इज नॉट नीडेड। तो यहाँ पर देखो 0 दिया है y एक्सिस पे, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 8। एक्सिस पे देखते हैं तो 1960 में देखो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब क्या एवरेज जीने वाले लोग कितने थे, 54 ईयर्स यहाँ तक की उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। इतने साल तक के वो सरवाइव करते थे, अपनी जीवन जो है वो अच्छे से उनका व्यतीत होता था। इन 1970 वहां पर अगर हम लाइफ स्पैन देखते हैं तो हमें कितना नजर आता है, इट इज इंक्रीज टू द 59 फ्रॉम 54 टू 59। यहाँ पर 5 इयर्स का और उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज है। 1960 में 50 जो एवरेज था वो अभी 1970 में वो बढ़ चुका है और वो 59 हुआ है। देन 1980 में इट इज इंक्रीज और कहाँ तक हुआ है, 1980 में 62 ईयर्स यहाँ तक हुआ है। मीन्स लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहा है, जहां तक के 54 1960 में 54 ईयर्स तक लोग जीते थे, तो अभी वहां पर 1980 में वो 62 ईयर्स तक के वो अभी जीने लगे। मतलब क्या, उनकी उम्र और क्या होने लगी है, बढ़ने लगी, लाइफ स्पैन बढ़ने लगा है, ज्यादा साल तक वो जीने लगे हैं। अगेन 1990 में वो 65 ईयर्स तक के
एवरेज पीपल जीने लगे हैं. In 2000 it is continuously like expectancy is increasing, means 70 years तक के लोग जीने लगे. Again 2010 में 73 and in 2016 that is the 75. मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि ब्राजील में हमें 75 इयर्स तक की एवरेज लाइफ होती है लोगों की, एवरेज. तो इतनी उनकी उम्र बढ़ गई है. मीन्स उम्र बढ़ गई मतलब क्या, लाइफ स्पैन बढ़ गया. वो कैसे बढ़ गया है, जब भी कोई कंट्री में अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से डेवलप होती है, अगेन हॉस्पिटल्स, सब चीजें होती हैं, डेवलपमेंट अच्छे से होती है, न्यू एडवांस फैसिलिटीज होती है, तो इन सब का इम्पैक्ट लाइफ स्पैन के ऊपर होता है. तो ऐसे ही अगर कोई कंट्री अगर डेवलप बनती है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है, तभी क्या होता है, वहां पर जितने भी पीपल रहते हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ता है. मीन्स क्या, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है. अगर वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमें कोई कंट्रीज में, मतलब क्या, जो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, वहां पर उस कंट्रीज में हमें क्या देखने को मिलता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है. वो क्यों होती है कम, क्योंकि जैसे कि देखो मेडिकल फैसिलिटीज में अगर की बात करेंगे, मतलब हॉस्पिटल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी ये सब अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, तो छोटी मोटी बीमारियों से भी पीपल की डेथ होना स्टार्ट होता है. मीन्स वहां पर उतना अच्छा एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है या फिर कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं है ऑपरेशन के जैसे होते हैं, अगेन और भी चीजें, हेल्थ अवेयरनेस नहीं होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, पीपल लॉन्ग लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या करती है, किसी कंट्री की जो डेवलपमेंट है इसको भी मेजर करती है. तो अभी हम जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की देखते हैं. तो देखो, तो उसमें क्या नजर आ रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंडिया की. 1960 में कितने, दैट वाज एवरेज 41 इयर्स. मींस 1960 में हमें इंडिया में 41, बस इतने ही एज तक के लोग एवरेजली सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं. मतलब उनका लाइफ स्पैन कितना था, टू शॉर्ट, बहुत कम था, क्योंकि कितना 41 इतना ही दिख रहा है ना हमें. देन 1970 में इट इज स्लाइटली इंक्रीज, मीन्स 7 इयर्स का उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो मतलब जैसे ही कंट्री डेवलप करते जा रही है वैसे ही क्या हो रहा है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो अगर हम ब्राजील से कंपेयर करते हैं तो उस वहां पर ही हमें समझ में आ रहा है 1960 में ब्राजील का कितना था, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 54 इयर्स था. और इंडिया का 1960 में हमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना दिख रहा है, 41. मीन्स क्या, बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है एज कंपेयर टू द ब्राजील. In 1970, we can see it is slightly increased in India, that is the 48 years. In 1980, it is again increased to the 54 years. 1990, it is increased again to the 58 years. तो ऐसे यहाँ पर हमें 1990 में 58 years इतना लाइफ स्पैन क्या है, पीपल का एवरेजली बढ़ते हुए नजर आ रहा है. इन 2000 it is increased 63 years. Then in 2010 it is increased 67 years, and in 2016 that is increased to the 68 years. If we compare with the Brazil, we can see Brazil has 75 years like life expectancy average, और इंडिया में क्या नजर आता है, तो 68 इयर्स. मीन्स क्या, हम यहाँ पर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो इंडियंस हैं वो क्या है, ब्राजीलियन से क्या है, पीछे हैं. तो उनका वो 75 इयर्स तक के एवरेजली जीते हैं और इंडिया के 68 इयर्स तक के एवरेजली जीते हैं. तो इसमें क्या है, वो जो जस्ट नाउ आई सेड ना, these factors about the medical facilities and other development, these things are responsible for the life expectancy. Now we'll see the characteristics.
This graph shows the life expectancy of Brazil and India. Life expectancy means the average number of person born in a country in expected to live. तो कोई भी जितने भी पीपल है एवरेजली वो कितना ईयर्स तक के जीते हैं तो उसका वो एवरेज निकाला होता है. That is life expectancy. Increase in life expectancy is an indicator of development of that society. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है. उस सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसको वो इंडिकेट करता है. Improvement in medical facilities, progress in medical field, access to nutritious food lead to an increase in average life expectancy. तो जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज है, अगेन मेडिकल फील्ड में भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज होते हैं ऑपरेशन के या फिर अदर थिंग्स, उसमें इम्प्रूवमेंट होना, अगेन न्यूट्रिशियस फूड भी पीपल को अवेलेबल होना, ये सब चीजें क्या करते हैं, जो उस कंट्री की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं. उनको गुड फूड दिया जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी, तो क्या होता है, पीपल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ता है. मीन्स क्या, वो ज्यादा उम्र तक के वो जी पाते हैं. द नेक्स्ट इज, इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस. तो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब क्या, जस्ट नाउ वो मीन्स फ्रॉम द last 2 decades they have started their development. These are countries are the developing countries. Means क्या, जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो चुकी है वो अभी भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं डेवलप होने के लिए. तो उन कंट्रीज में हम देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या नजर आ रही है, तो अभी भी वो स्टिल लेस, बहुत अभी भी वो कम है. मतलब क्या कि उनका पीपल का जो लाइफ स्पैन है वो अभी भी हमें कम नजर आता है. बट विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज इंक्रीजिंग. पर अभी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या कि पीपल जैसे ही क्या होते हैं, उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, तो क्या होता है, तो उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है. मीन्स दे कैन गेट द मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल, इवन न्यूट्रिशियस फूड ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. This is also important point, literacy rate. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या है, there are 2 graphs are given. First is literacy rate of Brazil and second is literacy rate of India. On y-axis literacy rate given in percent on the both graphs. हमें दोनों ग्राफ पे y एक्सिस पे लिटरेसी रेट जो है वो इन परसेंट में दिया हुआ नजर आ रहा है. एंड ऑन द x एक्सिस decades are given. First of all, we'll observe the first map, that is the literacy rate of Brazil. अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें हमें क्या नजर आता है, 1961 लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील इज 74.6%. मीन्स अगर 100 वहां पर अगर पीपल कंसिडर किए जाएंगे तो उसमें से 74.6% क्या रहेंगे, लिटरेट रहेंगे. लिटरेट मीन्स क्या, कि जिनको एजुकेशन मिल चुका है, दैट इज लिटरेसी रेट. मतलब उस कंट्री में, कौन सी भी कंट्री हो, वहां पर कितने लिटरेट पीपल है, मीन्स क्या, कितने एजुकेटेड पीपल है, जिन्होंने क्या है, कुछ सीखा हुआ है स्कूल में जाके, तो दैट इज लिटरेसी रेट. तो हम इसमें लिटरेसी रेट अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा इन परसेंट आता है. मीन्स जितने, अगर टोटल एक कोई रीजन पकड़ेंगे, कोई एरिया पकड़ेंगे, वहां का अगर हमें लिटरेसी रेट निकालना है तो वहां पर हम कितने पीपल रहते हैं और उसमें टोटल पॉपुलेशन में फिर कितने पीपल एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, तो इनका जब भी हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज अ लिटरेसी रेट. तो अगर हम ब्राजील में देखते हैं तो हमें 1961 में कितना दिखा था, 74.6%, इतना लिटरेसी रेट था. देन 1981
1991, 2001, 2011 एंड 2016 ऐसे यहाँ पर डिकेड्स दिए हुए हैं। 1981 में हमें 74.6% इतना लिटरेसी रेट, 1991 में वो हुआ है, इंक्रीज हुआ है कितना 80% तक, मीन्स 100 पीपल में से हमें 100 पीपल कंसिडर करते हैं तो उसमें से 80% मतलब 80 पीपल ऐसे नजर आएंगे कि वो क्या है, लिटरेट है। वो ये कहाँ पर कंडीशन है, तो ये ब्राजील में। देन 2001 में 86.4%, अगेन फिर से बढ़ गया है उसमें, देखो 2001 में लिटरेसी रेट। देन 2011 में देखेंगे तो 91.4% इतना लिटरेसी रेट वहां पर बढ़ा है। देन उसके बाद इन 2016 92.6% लिटरेसी रेट कैन बी सीन। तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि 2016 में 92.6% लिटरेसी रेट था, मतलब क्या 100 में से कितना 92 या फिर 93% पर्सन वहां पर लिटरेट नजर आएंगे, जिनको एजुकेशन मिल चुका है। ऐसे हमें ब्राजील का लिटरेसी रेट दिख रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इंडिया को ऑब्जर्व करते हैं, इंडिया का लिटरेसी रेट, देन विल कंपेयर। तो सेम ईयर सेम डिकेड दिया है, देखो एक्स एक्सिस पे स्टार्टिंग वाला डिकेड 1981, इंडिया में लिटरेसी रेट हमें क्या देखने को मिलता है, 40.8%, मीन्स इट इज नियरली हाफ टू द ब्राजील। अगर हम 1981 की ब्राजील की बात करते हैं तो वहां पर हमें 74.8% इतना क्या देखने को मिलता है, लिटरेसी रेट, बट इंडिया में वो 40.8%, मतलब बहुत ही ज्यादा लेस है एज कंपेयर टू द ब्राजील। इन 1991 इट इज 48.2%, then in 2001 61.0%, then in 2011 69.3%, and in 2016 it is 72.2%. If we compare with the Brazil, we can see our literacy rate of India in 2016 is less than the literacy rate of Brazil, which was in the year 1981, क्योंकि 1991 में ब्राजील का लिटरेसी रेट 74.8% था और इंडिया का 2016 में भी नहीं है उतना, कितना है वो 72.2%। मीन्स हम अगर डिकेड की बात करेंगे तो कितना, हम 4 डिकेड उनके पीछे है, वो हमसे और भी 4 डिकेड या फिर उससे भी ज्यादा वो क्या है, हमसे आगे है। तो ऐसा हमें यहाँ पर लिटरेसी रेट नजर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे हैं। देखो विच कंट्री हैज अ हायर सेक्स रेशो, जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा था ब्राजील कंट्री हैज अ हायर सेक्स रेशो। क्यों, क्योंकि वहां पर फीमेल का परसेंटेज क्या था, मेल से ज्यादा था। देन नेक्स्ट है विच कंट्री हैज हायर लिटरेसी रेट, we can see Brazil has higher literacy rate. The next is which country is growing at a faster rate, कौन सी कंट्री जो है वो फास्टर रेट में बढ़ रही है, कौन सी कंट्री ग्रो हो रही है, मतलब क्या, द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, वी कैन कंसिडर द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो कंट्री की ग्रोथ कभी होती है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वी कैन से एज अ ग्रोथ ऑफ कंट्री। So India's population is growing at a faster rate. Which country has a higher population of the old age people? कौन सी कंट्री में हमें हायर प्रोपोर्शन देखने को मिला है ओल्ड एज पीपल का? तो ब्राजील कंट्री हैज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड एज पीपल। Now we'll revise the population composition. The first number is given, the point of comparison. First is sex ratio. इंडिया का क्या है, लेस देन 1000। सेक्स रेशियो इंडिया में क्या है, लेस देन 1000 मेल है, उनके पीछे क्या है, फीमेल्स 994।
इतने ही हमें 64 इतने हमें हमने स्टार्ट किया था और एंड कितने तक गया था 947 मतलब यहाँ तक हमें क्या देखने को मिला था सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द सेक्स रेशो इज 947 तो हमें यहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो कितना 947 इतना नजर आ रहा है स्लाइटली इंक्रीज सेक्स रेशो आफ्टर 1991 तो 1991 में के बाद से ही इंडिया में सेक्स रेशो बढ़ा है मींस फीमेल का परसेंटेज जो है वो बढ़ा है नाउ विल सी द सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स बहुत सारे डिकेड्स गए हैं तब से ही क्या है ब्राजील का जो सेक्स रेशो है वो क्या है तो मोर देन 1000 है मतलब क्या मेल 1000 है तो उनके पीछे फीमेल्स 1000 से कई गुना ज्यादा है द सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010 1090 अगर हम 2010 का उनका जो सेंसस डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है 90 फीमेल जो है पर 1000 मेल के पीछे हमें एक्स्ट्रा नजर आ रही है ज्यादा नजर आ रही है The third is considerable increase in sex ratio since 2001. Since अगर हम देखेंगे 2001 से लेके 2011 तो वहां पर ब्राजील का सेक्स रेशो क्या हुआ था बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो इंक्रीज हुआ था The next point of comparison that is the age and sex pyramid. The proportion of youth is more. इंडिया में क्या है यूथ का प्रोपोर्शन ज्यादा है and in Brazil the proportion of aged people is more old age people वहां पर ब्राजील में हमें ज्यादा नजर आते हैं the third point of comparison that is the population growth rate if we talk about the India first point is from 2001 to 2011 population increased by 18.2 crores and the second the rate of population growth is now declining but total population is still growing तो भले ही पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या डिक्लाइनिंग हो रहा है कम हो रहा है बट फिर भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो अभी भी बढ़ रही है इफ वी टॉक अबाउट द ब्राजील द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट द फर्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स और हमें वही ग्राफ देख के ये भी पता चल रहा है कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स तक के ब्राजील में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो अभी नहीं होने वाली है द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया वी कैन सी द 68 years was the average life expectancy in 2016 and if we compare with the Brazil Brazil had 75 years life expectancy in 2016 and the last point is point of comparison that is the literacy rate we can see in India 72.2% was the literacy rate in 2016 if we talk about the Brazil we can see the 92.6% was the literacy rate in 2016 this is the question which can be asked in the exam correlate life expectancy and social development तो यहाँ पर इसका आंसर है कोरिलेट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सोशल डेवलपमेंट कोरिलेट करने के लिए बोला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सोशल डेवलपमेंट कोई भी कंट्री की जो सोशल डेवलपमेंट होती है मींस क्या अवेयरनेस in the society and the development in the medical facilities economical development all these things are correlated with the social development and the question is saying that we have to correlate the life expectancy to the social development the answer is first point increase in life expectancy indicates increase in social development of a country जब भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है वो इंडिकेटर है किसे इंडिकेट करता है कि सोशल डेवलपमेंट उस कंट्री की कैसे हो रही है अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होते हुए नजर आ रही है मतलब क्या कि वो कंट्री जो
एक तो पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती होगी, इसी वजह से क्या होता होगा वहां पर, अगेन उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी वहां पर नहीं होती होगी, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, ऐसा वो नजर आता है। मतलब ये क्या है, इंडिकेटर है जो हमें क्या बताता है कि उस कंट्री की सोशल डेवलपमेंट कैसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी मतलब क्या, कि वो कंट्री क्या हो रही है, डेवलपमेंट कर रही है, वो डेवलप हो रही है। The second is availability of medical facility, advancement in medical sciences, availability of nutritious food, etc. factors help in increasing life expectancy. As we have discussed about this, जब भी क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होते बढ़ते हैं, अगेन न्यूट्रिशियस फूड भी मिलते हैं लोगों को, तो ऐसी चीजें जो है, ऐसे जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। द थर्ड इज कंपेयर्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज इज वेरी लेस। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज में क्या नजर आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी लेस ड्यू टू प्रोग्रेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट in developing countries. The life expectancy is developing countries is gradually increasing. तो हम क्या करते हैं, तो जब भी डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं तो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जैसे ही बढ़ते जाती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी क्या होती है, ग्रेजुअली बढ़ते जाती है। द फोर्थ पॉइंट, इन इंडिया in 1960 the life expectancy was only 41 years. We have already seen in 1960s the life expectancy was 41 years. On the contrary, in 2016 it was 68 years. Means we can see the difference between 1960 and 2016. तो यहाँ पर क्या है, 41 years से लेके 68 years इतना लाइफ स्पैन बढ़ा है। दिस इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स इंक्रीज इन सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यही हमें क्या बताता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे इंडिया में बढ़ चुकी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट द सेंसस इन इंडिया। तो इंडिया का जो सेंसस है, सेंसस मतलब क्या, कि जो क्या करता है, जो भी पॉपुलेशन डेटा है उसको कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का काम करता है, दैट इज द सेंसस। तो इसके बारे में ब्रीफली कुछ बताना है। द फर्स्ट पॉइंट, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया वंस एवरी 10 years। 10 साल में एक बार क्या होता है, तो पॉपुलेशन डेटा क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है, तो सेंसस कंडक्ट किया जाता है। सेकेंड इज, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस सर्वे वाज कैरिड आउट इन 1872। इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था, सेंसस सर्वे हुआ था, तो वो कभी हुआ था, 1872 में। द थर्ड इज, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिकेड। तो इंडिया में हम देखेंगे तो हमें सेंसस कहाँ पर कंडक्ट होते नजर आता है, जो भी डिकेड है उसके स्टार्टिंग के ईयर में। जैसे कि देखो 2001, अगेन 2001, 2021 एंड उसके बाद क्या रहेगा 2031, ऐसे। तो जो भी डिकेड है उसका स्टार्टिंग वाला ईयर होता है, वहीं पे क्या होता है, सर्वे होता है उसी ईयर में। द फोर्थ पॉइंट, इन इंडिया द नेक्स्ट सेंसस सर्वे विल बी कैरिड आउट इन 2020। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेंसस जो होता है, इसको कलेक्ट करने का, जो भले ही उसको पब्लिश करने का ईयर हमें क्या नजर आता है, डिकेड का स्टार्टिंग वाला ईयर, बट उसको कलेक्ट करने का जो, या फिर उस काम को स्टार्ट करने का काम वो उस उसके पहले के डिकेड का जो लास्ट ईयर होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, राइट अबाउट द सेंसस इन ब्राजील। So first is, in Brazil, census is conducted by the Institute of Brazilian Institute of Geography and Statistics once every 10 years। अपने इंडिया की तरह ही सेम 10 साल के बाद यहाँ पर भी सेंसस कंडक्ट किया जाता है। In Brazil, the first census survey was carried out in 1872।
सेंसस सर्वे स्टार्ट हुआ था. इन ब्राजील सेंसस इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द डिकेड. जैसे अपने यहाँ पर डिकेड के स्टार्टिंग में सेंसस होता है, कंडक्ट किया जाता है, वैसे उनके यहाँ पर क्या है, डिकेड के एंड में कंडक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल 2000, 2010, 2020, 2030, like that. In Brazil, the next census survey will be carried out in 2020. Okay, students. Thank you. This lecture is over and this chapter is also over. In the next period, we'll see the next chapter, that is chapter number 7, human settlements. Till then, bye. Hello, ma'am. So, Lecture is over. Shall I leave? If anyone has any doubt, they can ask me. Yes, ma'am. Shall I leave?